कैसे स्टार्ट? नेक्स्ट चलो, बीएमसी लास्ट क्लास में अपना बॉन्ड स्टार्ट हुए थे, ब्रिक बॉन्ड्स। ये ब्रिक से अलग है, मतलब ब्रिक चैप्टर हो गया हमारा। ये ब्रिक मैसनरी में आता है, मैसनरी डिजाइन भी होती है, वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये इसलिए कर रहे हैं भाई नीड है, जो भी नीडफुल चीज़ें हैं बिल्डिंग मटेरियल में वो सारी आ जाएंगी। एक होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वहाँ पे आपको मैसनरी पढ़ना पड़ेगा, समझ लो। लेकिन यहाँ पे अपने को सारी जानकारी मिल जाएगी बॉन्ड की, इसके हेल्प से सारा इजी होता है जाएगा, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अपने कौन से बॉन्ड पढ़ लिए थे? हेडर बॉन्ड पढ़ लिया था, मैंने स्ट्रक्चर बॉन्ड पढ़ लिया था। हेडर मतलब हेडर जो हेडर दिखेंगे सब सारे के सारे, और जो स्ट्रक्चर दिखेंगे वो सारे दिखेंगे। उसके लिए मैंने आपको ये कहानी बता रही थी कि क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ताकि वर्टिकल अलाइनमेंट क्या हो जाए, उसकी ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, क्लोजर और बैट बताई थी। थोड़ा सा मैं आपको वो कर रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि आपको मतलब एक फ्लो बन जाए। अब ये बताओ मुझे क्लोजर क्या होता है? व्हाट इज क्लोजर? क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, हाफ, ये सब बताया था ना। क्या होता है क्लोजर? व्हाट इज क्लोजर? लेंथ वाइज क्या विड्थ वाइज? जब लेंथ वाइज कट करोगे तो उसको बोलते हैं क्लोजर। जहाँ भी नाम आ गया क्लोजर, उसको लेंथ वाइज काटना है। जहाँ भी विड्थ वाइज काटेंगे उसको क्या बोल देंगे? बैट बोल देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, यूज होंगी सारी चीज़ें, वो दोबारा से एक बार थोड़ा सा मैंने आपको टच में ले आया, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑफ द बॉन्ड इज इंग्लिश बॉन्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड। लिखो इसकी कहानी, दिस इज इंग्लिश बॉन्ड। This is the most commonly used. This is the most. This is the most commonly used wall. This is the most commonly used. This is the most commonly used wall. This is the most commonly used wall, and is considered to be strongest. And is considered to be strongest. Strongest होती है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। It consists of alternate cores. Most important point. It consists of alternate cores of stretcher and header. Stretcher and header. It consists of alternate cores of stretcher and header, one over the each other. One over the each other. Third point. In order to break the alignment, of vertical joints, in order to break the alignment of vertical joints, to fall in same straight line, queen closer half is provided. Queen closer half is provided next to the क्योन हेडर, ठीक है। क्योन हेडर सारी चीज़ें बता रखी है मैंने। क्योन क्या होता है, फॉर्मल पे जो प्रोवाइड करते हैं, ये अपना क्वीन क्लोजर हाफ क्या होता है, उसको हाफ कट करना, वो सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। नेक्स्ट इज एन ओवरलैप ऑफ फोर्थ पॉइंट, एन ओवरलैप ऑफ at least 1/4 brick is available. At least 1/4
brick is available. An overlap of at least 1/4 brick is available for the stretcher over the header. For the stretcher over the header. Over the header. Over the header in every course. In every next देखिए no header course in this case. No header course in this case. No header course in this case must start from queen closer half. Must start from queen closer half. Queen closer half से start नहीं करेंगे. क्यों? As it is liable to displaced off. As it is liable to displaced off. As it is liable to displaced off. Okay. Queen closer are not required. Sixth point. Queen closer are not required in structure course. Are not required in structure course. Queen closer are not required in structure course. Number of vertical joints in header course. Number of vertical joints in header course are twice the number of vertical joints. Are twice the number of vertical joints. Are twice the number of vertical joints in the structure course. Structure course. Eighth. Joints in header course are made thinner than joints in structure course. Joints in structure course. Then joints in structure course. Alright, चलो ये देख लो. Thickness of English bond is 9.5. Thickness of English bond is 1.5 ring. 1.5 ring. 1.5 brick के बराबर होगी. For walls having the thickness, for walls thickness in odd, for wall having the thickness in odd multiples of half brick thick. Odd multiples of half brick thick. Half brick thick. In odd multiples of half brick thick. Having the thickness in odd multiples of, अभी समझा दो मैं.
नेक्स्ट पॉइंट, हेडर इन एनी केस, लास्ट पॉइंट है, हेडर इन एनी केस, header in any case, any course, header in any course, दूसरी तरफ होगा उसके स्ट्रक्चर, header in on any course on one face is projected by, on one face, on one face is projected by structure, स्ट्रक्चर ऑन अपोजिट डायरेक्शन, ऑन अपोजिट या अपोजिट फेस लिख सकते हो डायरेक्शन को, अपोजिट फेस, अपोजिट फेस। चलो ये सारी कहानी देख लेते हैं। आ जाओ, देखो कैसा बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड है। इंग्लिश बॉन्ड क्या कहता है, कहता है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बॉन्ड है बॉन्ड के अंदर, दूसरा ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स होते हैं, क्या किस किसके, नीचे स्ट्रक्चर होगा, ऊपर हेडर होगा, समझ गए। अगर स्ट्रक्चर और हेडर होगा तो कैसी शेप बनेगी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज द वैल्यू, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं इसको, नीचे क्या है, स्ट्रक्चर है, तो नीचे स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर दो, ठीक है। ऊपर क्या है, हेडर, सो ऊपर आ जाओ, हेडर, ऊपर हेडर 1 2 3 4 5, फिर ऊपर क्या है, दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज, देख रहे हो, समझ गए बात। ये कहाँ पर यूज नहीं कर लो, बोल बनानी ऐसी मर्जी बना सकते हो, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जहाँ पे अपने को स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए वहाँ पे यूज़ करते हैं, इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, इसकी थिकनेस अच्छी होती है, 1.5 ब्रिक की होती है इसकी, वो सारी चीज़ें हैं इसकी, और दिखने में अच्छी होती है बट स्ट्रॉन्ग होती है। इसको दिखने में अच्छी बनानी है तो फैमिली बोर्ड प्रोवाइड कर दो, दूसरी चीज़। अब देखो मैंने कहा नीचे स्ट्रक्चर है, ऊपर हेडर है, यहाँ पे क्या आ गया, वर्टिकल जॉइंट आ गया, क्या हो गया, यूनिटी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये यूनिटी क्या हो जाए, ये वाली जो वर्टिकल जॉइंट से क्या हो जाए, ब्रेक, समझ गए बात। तो हेडर स्ट्रक्चर हेडर लगा रहे हैं बट एक जॉइंट इकट्ठे थोड़ी होंगे, टूट जाएगी ब्रेक तो इससे क्या किया इसने, इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड हेडर वन ओवर द ईच अदर इन ऑर्डर टू ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स। कहता है इस वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू फॉल इन सेम स्ट्रेंथ क्वीन क्लोजर हाफ। अब उसने क्या किया, क्वीन क्लोजर हाफ प्रोवाइड कर दिया। अब क्वीन क्लोजर हाफ इज प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू द क्वीन हेडर। स्टार्टिंग में तो क्वीन हेडर दे दिया इसने, जो हेडर दिखता है समझ लो ना, तो कॉर्नर पे हेडर दिखेगा आपको, उसके बाद क्वीन क्लोजर प्रोवाइड कर दिया, क्वीन क्लोजर हाफ, हाफ मतलब हाफ ब्रेक कट करते हैं, हाफ कट करके वहाँ पे लगा दिया। अब इससे क्या हुआ, वर्टिकल जॉइंट्स क्या हो गए उसके, ब्रेक हो गए। नेक्स्ट, एन ओवरलैप ऑफ एटलीस्ट, कहता कम से कम ओवरलैप क्या होगा, एटलीस्ट 1/4 ब्रिक का होगा। 1/4 ब्रिक मतलब जो ब्रिक की लेंथ है उसका 1/4 हेडर के साथ क्या रहेगा, उसका ओवरलैप रहेगा, समझ गए बात। कैसे, जैसे बताया था ये कहानी, ओवरलैप वाली कहानी बताई थी ना मैंने आपको, ये है ओवरलैप। अब हेडर का 1/4 का मतलब क्या होगा, हेडर है, हेडर कितने सेंटीमीटर का होता है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बाय 2, ये किसके इक्वल है, 19/4, मतलब लेंथ वाइज 1/4 ओवरलैप होता है। तो कम से कम 1/4 ब्रिक का तो ओवरलैप होता ही होता है हेडर के साथ। स्ट्रेचर का हेडर के साथ 1/4 हिस्सा टच करेगा, जैसे ये स्ट्रेचर है, अब हेडर ऐसे लगाना है ना आपने, कम से कम 1/4 हिस्सा इस पे टच होना चाहिए, ज़्यादा भी कर सकते हैं एटलीस्ट, बात समझ गए ना, अरे समझे नहीं। दिस इज दी स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, ये स्ट्रेचर, ये हेडर जो लगेगा यहाँ पे, ये कम से कम 1/4 हिस्सा ओवरलैप करना चाहिए। अब ठीक है, ऊपर दिख रहा है हेडर, ये दिख रहा है स्ट्रेचर, समझ गए ना, ये स्ट्रेचर हो गया और ऊपर क्या आ गया, हेडर आ गया। मैंने कहा हेडर का 1/4 हिस्सा ओवरलैप करेगा इसके साथ। 1/4 हिस्सा है कितना, जो 9/2 सेंटीमीटर, समझ गए, 9/2 सेंटीमीटर, तो मैंने बता दिया, समझ गए ना। ये मैंने किसी तरह से ओवरलैप की कहानी बताई थी, अब याद आ गई, समझ आ गई क्या नहीं आई, अरे चलो समझ आए, इल्टे ले आए क्या। ये देखो, ये क्या दिख रहा है, ऐसे ऐसे स्ट्रेचर होंगे, कोई दिक्कत, स्ट्रेचर लगा होगा, आगे वो वर्टिकल जॉइंट ब्रेक करनी है वो छोड़ो। अब स्ट्रेचर के ऊपर क्या लगेगा, हेडर्स लगेंगे। अब हेडर का, अब ये हिस्सा है हेडर का, अब ये हेडर, यहाँ दिख रहा है हेडर, अब इस हेडर को अगर 4 हिस्सों में बांट दें, ये कम से कम जो 1/4 हिस्सा इसके ओवरलैप होना चाहिए, तो समझ आ गया, ये सारी समझ आ गई। इसलिए बोलते हैं 1/4 ब्रिक,
1/4 ब्रिक का मतलब कम से कम 1/4 ब्रिक जो है, 1/4 किसकी, हमेशा लेंथ वाइज, समझ गए ना बात, तो लेंथ वाइज, तो इसको बोल देते हैं फॉर दी स्ट्रेचर और दी हेडर इन अर्ली कोर्स। हर कोर्स के अंदर 1/4 तो कम से कम ओवरलैप करानी पड़ेगी, नहीं तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा यार। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो कम से कम 1/4 तो करनी है, ये सारी कहानी है। नेक्स्ट है नो हेडर कोर्स इन दिस केस मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द क्वीन। कोई भी हेडर कोर्स जो है क्वीन क्लोजर स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आपने क्वीन क्लोजर स्टार्ट कर दिया तो ब्रेकेज होने की ज़्यादा टेंडेंसी है, वो टूट जाता है जल्दी, समझ ना, ऑलरेडी हाफ तोड़ रखा है आपने, वो और ज़्यादा टूट जाएगा, समझिए बात। तो इट इज लायबल टू डिस्प्लेस ऑफ। क्वीन क्लोजर आर नॉट रिक्वायर्ड इन स्ट्रेचर कोर्स। क्वीन क्लोजर आपको स्ट्रेचर कोर्स में तो रिक्वायरमेंट है, सिर्फ हेडर कोर्स में रिक्वायर्ड है। नीचे स्ट्रेचर फिर हेडर, अभी दिखाता हूँ उसको सारी कहानी। नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स इन हेडर कोर्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट इन स्ट्रेचर कोर्स। जो नंबर ऑब्वियसली बात होंगी, तो वर्टिकल जॉइंट्स हेडर के डबल हो जाते हैं, वो भी हैं, वो देखो ये मैंने वैसे एग्जांपल दिए, उसमें देख लो आप, एक जॉइंट, दो जॉइंट, यहाँ पे एक जॉइंट, दो जॉइंट, तीन जॉइंट, चार जॉइंट, अल्टीमेटली 4 जॉइंट तो कम से कम ये ले जाता है, समझ रहे बात, तो एटलीस्ट ट्वाइस हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू नेक्स्ट बताया मैंने, नेक्स्ट बताया जॉइंट्स इन हेडर कोर्स आर मेड थिनर देन द जॉइंट्स इन स्ट्रेचर कोर्स। जो जॉइंट्स होंगे हेडर कोर्स के वो पतले होंगे विद रिस्पेक्ट टू द हेडर स्ट्रेचर कोर्स। नेक्स्ट बताया थिकनेस ऑफ इंग्लिश बॉन्ड कितनी रहती है, थिकनेस कितनी रहती है, हाफ ब्रिक की थिकनेस, समझ गए, हाफ ब्रिक कैसे समझे, हाफ ब्रिक डेढ़ सॉरी 1.5 ब्रिक, इसका क्या मतलब है, 2 इंची होगी, या ऐसा बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो जैसे 1.5 ब्रिक का मतलब ये है भाई, 1.5 ब्रिक का मतलब आधी 3 होगी, अल्टीमेटली उतनी थिकनेस, समझिए ना, ओल्ड मल्टीपल में रहेगी इसमें, तो ये ओल्ड मल्टीपल में रहेगी, तो थिकनेस जो है उसकी 1.5 ब्रिक की बता, 1 ब्रिक पूरी आधी ब्रिक, तो वो रहेगी मेरी थिकनेस। अभी दिखाता हूँ इसको कैसे, इसमें जो अरे टोटल लेंथ वाइज देखना है ना, अरे समझे नहीं बात आप, जो टोटल लेंथ रहेगी ना उसकी वो 1.5 ब्रिक के बराबर है। 1.5 मतलब एक तो ब्रिक की थिकनेस होगी लेंथ वाइज और एक हाफ लेंथ की आधी, टोटल थिकनेस जो है वो 1.5 ब्रिक की आएगी, समझ रहे हो बात। नेक्स्ट बताया फॉर वॉल हैविंग द थिकनेस इन ओड मल्टीपल्स ऑफ हाफ ब्रिक थिक, मतलब उसको हाफ ब्रिक थिक बोलते हैं, उसको जो उसकी वॉल होती है उसको हाफ ब्रिक थिक बोलते हैं, हाफ मतलब 0.5 आ गया ना, तो हाफ ब्रिक थिक बोलते हैं। हेडर इन एनी कोर्स ऑन वन फेस इज प्रोजेक्टेड, अगर एक तरफ से आपको हेडर दिख रहा है तो दूसरी तरफ से क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये सारी कहानी देखते हैं, अब फोटो देखते हैं इसकी, फोटो देख लो इसकी, ये सारी कहानी है। इधर देखो, यहाँ देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले नीचे क्या लगा रखे हैं, ये नहीं, ये वाला वो, ये वाली वो देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, स्ट्रेचर 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 दिख रहा है आपको, कलर ले लेता हूँ, दिस इज द कलर येलो, ये दिख रहा है स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, ओके। स्ट्रेचर के बाद ऊपर वाला कोर्स कौन सा है, ऊपर वाले सारे हेडर आएंगे। हेडर में कोने में क्या लगा रखा है, ये है क्वीन क्योन हेडर, ये क्योन हेडर है, कॉर्नर पे लगा रखा है। उसके बाद क्या प्लेस कर दिया, क्वीन क्लोजर, क्या बोलोगे, क्वीन क्लोजर हाफ, देख रहे हो, फर्स्ट में जो सर लगा है वो हाफ का भी हाफ है, हाँ हाफ का भी हाफ, ठीक है, और हाँ। उस साइड का वो हाफ है क्या, वो क्वीन क्लोजर हाफ है, क्वीन क्लोजर हाफ। उसके बाद क्या कर दिया, फिर हेडर 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 प्रोवाइड कर दी, फिर स्ट्रेचर, फिर अगेन हेडर, ऐसे चलता है। ये सारी समझ गए बात, ठीक है ना, समझ गए, ये सारी कहानी होती है, ये सारी कहानी बता दी। अब देखो, अब मैंने आपको बताया इसकी थिकनेस देखो, थिकनेस देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, ये तो एक फुल ब्रिक होगी, अब ये क्या होगी, ये हाफ ब्रिक होगी, समझ गए, तो ये पूरी थिकनेस दिखा दी इसकी। इस व्यू में सब कुछ दिखता है, आइसोमेट्रिक व्यू है ना, ये ऊपर से भी दिख रहा है आपको, साइड से भी दिख रहा है, ये सारी कहानी। तो यही केस ऐसा भी हो सकता है, क्या पता नीचे हेडर लगा दे, ऊपर स्ट्रेचर लगा दे, ये भी हो सकता है, तो दोनों तरफ से हो सकता है, दोनों तरफ से दिखाएंगे। इसको मैं और दिखाऊंगा, दिख रहा है सारा ये, ओके दिख रहा है, तो ये सारी कहानी बस आपको इतना ध्यान रखना है, नीचे स्ट्रेचर आएंगे और ऊपर हेडर आएंगे। हेडर के अंदर हम क्या लगाते हैं, क्वीन क्लोजर हाफ लगाते हैं, और क्वीन क्लोजर हाफ से हमारी जो वॉल है वो स्टार्ट नहीं करते, स्टार्टिंग में क्या लगा देते हैं, क्योन हेडर लगा देते हैं, ये सारी कहानी। इसकी ब्रिक की थिकनेस कितनी है, 1.5 ब्रिक की थिकनेस है, ये सारी कहानी समझ गए बात, क्लियर है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट ऑफ द बॉन्ड इज फ्लेमिश बॉन्ड। कोशिश की है मैंने समझाने की, बट इसको दोबारा पढ़ के दोबारा से ऑब्जर्व करना है हर चीज़ को, एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को, ये आप घर जाने के लिए समझ नहीं आएगा, ठीक है, बट मैंने एक ट्राई कर लिया, नहीं आएगा समझ कर से बता दें, ठीक है, इतना अच्छे हो सर, इसके तो हाँ जो भी 1.5 ब्रिक की ये पूरी वो आप अब समझ आ गई 1.5 ब्रिक क्या, 1.5 ब्रिक आ जाएगी सारी। चलो अब आ जाओ फ्लेमिश पॉइंट। फोटो से सर क्लियर हो जाता है इसमें, ये होता ही काम ही इसका चलो, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट,
it is the arrangement of bonding which consists of bonding which consists of it is the arrangement of bonding which consists of alternate header and stretcher. Alternate stretcher and header. Alternate stretcher and header in every course. In every course. In order to break the alignment, second point. In order to break the alignment of vertical joints to be fall in same straight line, mean closure half is provided. Mean closure half is provided. Next to the Q header. Third, आप फोटोज बना के आओगे, सिलेक्टिव क्वेश्चन आता है ना इसमें, आप फोटोज को ट्राई करना बनाने का, तो इसको समझा देना अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ नंबर अच्छे मिलेंगे। अरे कितनी कहानी लिखोगे, समझे ना बात। तो आपको कोई भी सवाल भरना है, आप 4-5 पेज भरते कैसे भर दोगे, समझ रहे हो ना बात। मैंने जब आपको 10 पॉइंट लिखवाए हैं, आपको भरने हैं उस पर ज़्यादा पॉइंट, 700 नंबर के आते हैं पॉइंट। ये सर आ गया ना सर, पहले वो डायग्राम बना, सर आपको समझ होनी चाहिए पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, वो सारी कहानी कोई दिक्कत ही नहीं आती, क्लियर हो जाएगा सर। उसके पॉइंट्स ज़्यादा बन जाएंगे उससे, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज एन ओवरलैप ऑफ एट लीस्ट one-fourth brick length, at least 1/4 brick length is available. 1/4 brick, an overlap of at least 1/4 brick length is available for stretcher in all courses. Fourth point, every alternate course in this case, every alternate course in this case starts from header, okay, every header. Next point, fifth point is, लिख लिया क्या? Every header is centered over the stretcher. Every header is centered over the stretcher. अरे यार, चलो, every header is centered over the stretcher, below it. नेक्स्ट इसके टाइप भी है, पढ़े, इसके टाइप भी लिख लो। इसके टाइप हैं, these bonds are further of two types. These bonds are further of two types. First is, दो टाइप है, दो टाइप में डबल फ्लैमिश एंड सिंगल फ्लैमिश।
सिंगल फ्लेमिश, सिंगल फ्लेमिश। नेक्स्ट उसके बाद है, नेक्स्ट आ जाओ डबल फ्लेमिश पे। नेक्स्ट इज डबल फ्लेमिश पे। नेक्स्ट इज डबल फ्लेमिश बॉन्ड। डबल फ्लेमिश को इन दिस बॉन्ड, back and front, in this bond back and front are same in appearance. अब आजकल तो ईंटों की तरफ ध्यान होता होगा तुम्हारा, कौन सा बॉन्ड आ रहा है वॉल्स में। इन अपीयरेंस ईच कोर्स हैज, सेकेंड, each course has alternate header and stretcher. Alternate header and stretcher. Alternate header and stretcher. Walls having thickness. Walls having thickness. Odd multiples walls having thickness odd multiples of half brick, odd multiples of half brick, half bat, half brick, half bat, and 3/4 bats are usually used, and 3/4 bat are generally used. चलो लिख लो इसको, ओके। For walls having thickness, लिख लिया, फोर्थ पॉइंट इसी में। For walls having thickness, equal to even multiple, for walls having thickness equal to even multiple of half bricks, no, इसमें क्या रिक्वायरमेंट नहीं होगी, no bats are required, no bats are required. Next is single Flemish bond. B is single Flemish bond. देखो इसको, in this bond facing has appearance, in this bond हेलो, हाँ जी, अच्छा ठीक है सर, अभी कितनी देर में आओगे? ठीक है, ओके। इन दिस बॉन्ड फेसिंग हैज अपीयरेंस ऑफ, in this bond facing has appearance of double Flemish bond. Double Flemish bond and backing of English bond. Backing of English bond. ठीक है, नेक्स्ट। Thus, this bond, second point, this bond thus used strength of English bond, thus used
strength of thus use strength of English bond and appearance of Flemish bond and appearance of strength of English bond and appearance of Flemish bond, appearance of Flemish bond. Next C point. C point is C लिख दिया गया इसमें, मैंने 1 2 3 लिखना था, एक बार इसे 1 2 3 कर देता हूँ, काफ़ी पॉइंट है इस पर भी. दिस इज इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट लिखिए. थर्ड पॉइंट इज ये सारी कहानी होगी. थर्ड पॉइंट की दिस बॉन्ड कैन बी यूज फॉर दिस बॉन्ड कैन बी this bond can be used for this bond can be used for those wall having thickness those wall having thickness at least equal to 1/2 brick. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, डबल फ्लेमिश, इसमें लिख लो फेसिंग. नेक्स्ट लिखो इसके अंदर. फोर्थ इज डबल फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड facing is in double Flemish bond, facing is done with good quality bricks. Facing is done with good quality bricks. पॉइंट उसका सिंगल है. हाँ सिंगल. हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ नमस्ते. वो मैं 5 मिनट में करता हूँ आपको, ठीक है. क्वालिटी ब्रिक्स एंड चीपर ब्रिक्स. क्या हुआ? हाँ हाँ लिख लो इसके अंदर ही, अब बता रहा हूँ. एंड चीपर ब्रिक्स कैन बी यूज फॉर backing and hurting. ये सारी कहानी लिख लो, नीचे नोट डालो. इंग्लिश बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन फ्लेमिश बॉन्ड. इंग्लिश बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन Flemish bond. For wall thicker than 1/2 brick. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, Flemish bond gives better appearance. Flemish bond gives better appearance. Flemish bond gives better appearance than the English bond. Than English bond. हो गया. Broken bricks are used in form of bats. Broken bricks are used in form of bats. हो गया. बैट हो गया. एंड इन form of bats in Flemish bond. In Flemish bond, ये लिख लो पॉइंट. नेक्स्ट, but mortar requirement is more. But mortar requirement
इज मोर, ये लिख लो सर। लाइट ऑन कर लो, अंदर बैठ जाओ 5 मिनट। मोटार रिक्वायरमेंट इज मोर। कंस्ट्रक्शन विद फ्लेमिश बॉन्ड हो गया इतना। कंस्ट्रक्शन विद फ्लेमिश बॉन्ड, construction with Flemish bond requires greater skill, than English bond। ये सारी कहानी होगी फ्लेमिश बॉन्ड। चलो अब देखते हैं इसको क्या कहता है ये। हो गया। चलो अब इसकी कहानी देखते हैं। इसकी कहानी क्या कहता है ये। सबसे पहले ये बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया फ्लेमिश बॉन्ड। अब फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, अब जैसे कि इंग्लिश बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड में क्या बताया था, नीचे सारे स्ट्रक्चर आ रहे थे, ऊपर क्या आ रहे थे, हेडर आ रहे थे। यहाँ पे अल्टरनेटिव कोर्स में स्ट्रक्चर और हेडर आ रहे थे। इसमें एक ही कोर्स के अंदर स्ट्रक्चर हेडर ऐसे आएंगे। समझ गए बात। एक स्टार्ट होगा स्ट्रक्चर से, दूसरा स्टार्ट होगा हेडर से। तो ये सारी कहानी रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ दी ब्रिक, ये मैंने दिखा दिया आपको। यहाँ पे जैसे लगा दी, यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे हेडर, यहाँ पे स्ट्रक्चर अगेन हेडर। ये सारी कहानी होगी। दिस स्ट्रक्चर हेडर, ये सारी कहानी है। ऊपर स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ हेडर, अगेन यहाँ से स्ट्रक्चर, अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड अगेन यहाँ पे हेडर। तो ये सारी कहानी रहती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब अल्टरनेटिव कोर्स में स्ट्रक्चर आ गया, हेडर आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, हेडर आ गया, यहाँ पे आ गई। अब प्रॉब्लम क्या आई, एक वर्टिकल जॉइंट, कोई ना कोई वर्टिकल जॉइंट आएगा जो क्या कर देगा, उसको यूनिटी में नहीं कन्वर्ट होने देगा। ठीक है ना। तो यूनिटी में कन्वर्ट नहीं होने देगा, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस वर्टिकल जॉइंट्स को हमें क्या करना होगा, हमें ब्रेक करना होगा। और ब्रेक कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बैट्स, विद द हेल्प ऑफ क्वार्टर बैट्स, विद द हेल्प ऑफ ये सब चीज़ें ले लेंगे। अब कैसे करते हैं अप्लाई, इसकी कहानी को देखते हैं। इसकी कहानी में क्या बताया, सबसे पहले कहानी बताई, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग विच कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट स्ट्रक्चर एंड हेडर। ये कहानी समझ आ गई। नेक्स्ट बताया, इन ऑर्डर टू ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स टू बी फॉल इन सेम स्ट्रेट लाइन, क्वीन क्लोजर हाफ पता है अपने को। अब क्या प्रोवाइड कर देंगे, क्वीन क्लोजर हाफ इज प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू द क्वीन हेडर। अगेन वही कहानी है जैसे इंग्लिश बॉन्ड में मैंने बताई थी भाई, उसमें स्टार्टिंग में क्वीन क्लोजर हाफ प्रोवाइड नहीं करेंगे और पहले क्या प्रोवाइड कर देंगे, हम क्यून हेडर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद एन ओवरलैप ऑफ एटलीस्ट, अब इसमें भी क्या रहेगा, ओवरलैप कितना रहेगा, 1/4 ब्रिक का रहेगा। जैसे पहले कहानी बताई थी, लेंथ की हाफ ब्रिक क्या रहती है, उसकी ओवरलैप रहती है इसमें। ठीक है। तो उसके बाद फोर स्ट्रक्चर इन ऑल कोर्सेज, एवरी अल्टरनेट कोर्स इन दिस केस स्टार्ट्स फ्रॉम दी, कहाँ से स्टार्ट होगा, जो अल्टरनेट कोर्स है वो स्टार्ट कैसे होगा, हेडर से स्टार्ट होगा। ये सारी कहानी बता दी। नेक्स्ट बताया, एवरी हेडर इज सेंटर्ड, जो हर हेडर है वो सेंटर्ड होगा किस पे, स्ट्रक्चर के ऊपर। नीचे क्या है स्ट्रक्चर है इसके। नेक्स्ट, दीज बॉन्ड्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप, कितने टाइप्स हैं इसके, डबल फ्लेमिश और सिंगल फ्लेमिश। अब डबल फ्लेमिश और सिंगल फ्लेमिश क्यों यूज किया, उसकी कहानी देखते हैं। अब एक्चुअल में जो फ्लेमिश है वो सिर्फ अपीयरेंस के लिए है भाई, अच्छी अपीयरेंस चाहिए फ्लेमिश यूज करो, अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए क्या यूज करोगे, इंग्लिश यूज करो। ये सारी कहानी है। नेक्स्ट, डबल फ्लेमिश बॉन्ड की कहानी देखो। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या कहता है, इन दिस बॉन्ड बैक एंड फ्रंट। अब अपीयरेंस देखो, मैं अभी आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिखाऊंगा उसका। आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होगा, इस बॉन्ड के अंदर क्या होगा, बैक और फ्रंट इसकी क्या रहेगी, दोनों की अपीयरेंस सेम रहेगी। वहां पे कहानी बताई थी, एक तरफ से अगर हेडर दिख रहा है, दूसरी तरफ से क्या दिख रहा था आपको, स्ट्रक्चर दिख रहा था। स्ट्रक्चर और हेडर की प्रोजेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। ईच कोर्स हैज, हर कोर्स में क्या रहेगा, अल्टरनेट हेडर रहेंगे और स्ट्रक्चर रहेंगे। कैसे रहेंगे वो सारी कहानी बता दी। वॉल्स हैविंग थिकनेस ओड मल्टीपल, जो उसकी थिकनेस है ओड मल्टीपल्स में रहेगी। ओड मल्टीपल मतलब 1.5, 3, इसमें कहानी रहेगी। नेक्स्ट, हाफ बेड, अब उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, हाफ बेड यूज करेंगे, 3/4 बेड्स यूज करेंगे, वो सारी चीजें यूज करेंगे। नेक्स्ट, 4 वॉल्स हैविंग थिकनेस इक्वल टू इवन मल्टीपल, अगर वॉल्स की थिकनेस जो है इवन मल्टीपल की है, जैसे 2 ब्रिक की होगी या 4 ब्रिक की होगी, अगर इवन मल्टीपल की है तो वहां पे कोई बेड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको। नेक्स्ट बताया सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। अब सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, इन दिस बॉन्ड फेसिंग एज अपीयरेंस ऑफ डबल फ्लेमिश बॉन्ड, फेसिंग जो होगी वो डबल फ्लेमिश बॉन्ड की होगी, बट बैकिंग क्या हो जाएगी, वो इंग्लिश बॉन्ड की तरह हो जाएगी। समझ गए, बैकिंग मतलब इंग्लिश बॉन्ड के अंदर बैक क्या था, इंग्लिश बॉन्ड के अंदर बैक क्या था, इंग्लिश बॉन्ड के अंदर जो बैक था वो अलग अलग था, स्ट्रक्चर और हेडर दोनों अलग अलग थे। बट यहाँ पे क्या है, जो फेसिंग की अपीयरेंस कैसे रहेगी, आगे से तो अच्छा आपको फेसिंग दिखानी है, फेसिंग कहाँ की दिखाओगे, आपकी वॉल्स की आगे से दिखाओगे, पीछे से दिखाओगे क्या,
नहीं दिखाओगे ना तो आगे की जो वो उसकी अपीयरेंस रहेगी फ्लेमिश बॉन्ड की तरह रहेगी, डबल की तरह, बट पीछे से क्या होगा, उसकी प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ गए बात? तो मतलब आगे से स्ट्रेचर दिख रहा है तो पीछे से इंग्लिश बॉन्ड की तरह स्ट्रेचर वो दिख जाएगा आपको, हेडर दिख जाएगा। समझे बात को? सेम नहीं आएगी सर, तो फ्रंट में बैक में जरूरी नहीं है इसके अंदर, जरूरी नहीं है। पीछे की ब्रिक हम चेंज कर देते हैं वैल्यू, जो मतलब एग्जैक्ट सेम प्लेस नहीं करते ना इसके अंदर। अरे जरूरी थोड़ी है यार, सेम ब्रिक अगर यहाँ से स्ट्रेचर दिख रहा है तो पीछे भी स्ट्रेचर थोड़ी लगाएंगे, जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको हेडर भी यूज कर सकते हो इसके अंदर, सिंगल फ्लेमिश के अंदर, बट डबल के अंदर आपको सेम दिखानी पड़ेगी, उसकी अंदर से भी बाहर से भी अपीयरेंस दोनों सेम रहेंगी। नेक्स्ट है दिस बॉन्ड दस यूज स्ट्रेंथ ऑफ द इंग्लिश बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या करेगा, इसने क्या कर दिया, स्ट्रेंथ ऑफ इंग्लिश बॉन्ड की ले ली और अपीयरेंस कैसी दे दी, फ्लेमिश बॉन्ड की। अब स्ट्रेंथ तो इंग्लिश बॉन्ड की ले ली इसने, क्योंकि बाहर से स्ट्रेचर अंदर से, ये सारी कहानी हो जाएगी। 2 मिनट रुको यार, जान ले ली यार, नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, इन दिस बॉन्ड फेसिंग एज अपीयरेंस डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ये सारी कहानी होगी थी। दिस बॉन्ड कैन बी यूज फॉर दोज वॉल हैविंग थिकनेस एटलीस्ट इक्वल टू डेड ब्रिक की थिकनेस उसकी होनी चाहिए, ये सारी कहानी बता दी मैंने आप। इन डबल फ्लेमिश बॉन्ड, अभी एक लाइन बता दी मैंने आपको भी, डबल फ्लेमिश बॉन्ड में फेसिंग जो है वो गुड क्वालिटी ब्रिक्स की होती है, जो फेसिंग की, जब फेसिंग अच्छी ब्रिक्स की होगी। एंड चीपर ब्रिक्स कैन बी यूज फॉर द बैकिंग एंड हर्टिंग। बैकिंग एंड हर्टिंग मतलब, हर्टिंग मतलब सेंटर, ठीक है क्या, यहाँ लिख लो, दिस इज सेंटर, और बैकिंग मतलब बताइए आपको। तो बैकिंग और हर्टिंग में क्या बता दिया, इस पे जो वो चीपर ब्रिक्स यूज कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट बताया, अब इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है किससे, फ्लेमिश बॉन्ड से, फॉर वॉल थिकनेस कितनी, डेड ब्रिक की थिकनेस है। नेक्स्ट, फ्लेमिश बॉन्ड गिव्स बेटर अपीयरेंस देन इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड से ज्यादा अच्छी अपीयरेंस देगा। ब्रोकन ब्रिक्स आर यूज्ड इन फॉर्म्स ऑफ बैट, जो बैट्स की यूज करोगे आप, वो जो टूट जाएंगी ब्रिक्स उसको यूज कर लेंगे इन फ्लेमिश बॉन्ड। बट मोटार रिक्वायरमेंट क्या होती है, अब मोटार रिक्वायरमेंट कहाँ ज्यादा होती है, जहाँ पे ज्यादा हेडर होते हैं, समझ रहे हो। अब स्ट्रेचर कम है, हेडर नंबर ऑफ हेडर्स ज्यादा होते हैं, वहाँ पे मोटार की रिक्वायरमेंट अपने आप ज्यादा होती है, तो कोस्ट उसकी बढ़ जाती है। तो ये सारी कहानी होती है। अब इस कहानी को दिखाने के लिए देख रहा हूँ मैं, फोटो देखो, अब फोटो देखो, फोटो देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज आइसोमेट्रिक व्यू। यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो, यहाँ पे क्या दिखाया मैंने, दिस इज स्ट्रेचर, अगेन हेडर, अगेन स्ट्रेचर, अगेन हेडर, अगेन स्ट्रेचर, अगेन हेडर, ये सारी कहानी देख ली। उसके ऊपर वाली ब्रिक पे मैंने क्या बताया, अगेन क्योन हेडर प्रोवाइड करोगे, उसके बाद क्यू इंक्लोजर हाफ प्रोवाइड कर दोगे, सेम कहानी है वही वाली, बट यहाँ पे अल्टरनेटिव आ जाएंगे, स्ट्रेचर और हेडर, स्ट्रेचर हेडर। इसकी थिकनेस आपको दिखा रखी है, देख रहे हो आप, ये स्ट्रेचर दिखा रखा है, ये थिकनेस है, एक ब्रिक ये हो गई, हाफ ब्रिक ये होगी, तो 1 ब्रिक और हाफ ब्रिक की थिकनेस होगी। तो इस आइसोमेट्रिक व्यू को आपने 2-3 बार देखना है, उसको पढ़ना है, वो सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। आपने सर्च करना है आइसोमेट्रिक व्यू, उसी से ही बार बार उसको देखना है, बार बार हर एक पॉइंट को पढ़ना है, वो सारी चीज़ें इसी समझ आ जाएगी। आई समझ। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हलवा समझ रहे हैं, चलो चलो, ये सारी कहानी होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट शुरू करें। नेक्स्ट ऑफ द बॉन्ड इज फेसिंग बॉन्ड। नेक्स्ट पेज से कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑफ द बॉन्ड इज फेसिंग बॉन्ड। चलो, फेसिंग बॉन्ड का मतलब सिग्निफिकेंस एक है, एक लाइन में बता देता हूँ, उसके बाद लिखवा देता हूँ। फ्रंट और बैक पर डिफरेंट साइज की ब्रिक लगाई जाती हैं। फ्रंट में और बैक में अलग अलग साइज की ब्रिक लगाई जाती हैं, जिससे स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है। मतलब वहाँ पे स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं होता आपको, वहाँ पे फेसिंग ब्रिक बोलते हैं उसको। हाँ, वो बैक साइड में कुछ भी लगा दो, वो सारी कहानी। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है। चलो, दिस बॉन्ड इज यूज्ड, this bond is used where the bricks of different sizes, where the bricks of different sizes, this bond is used where the bricks of different sizes of thickness are to be used, thickness are to be used in the facing and backing of wall, in the facing and backing of wall, in the facing and backing of wall. In this bond,
header course is provided, header course in this bond, header course is provided after the several stretcher course, after the several stretcher, after the several stretcher course, as the thickness of bricks are different, thickness of bricks are, as the thickness of bricks are different in facing and backing, different in facing and backing, facing and backing, the vertical distance between the vertical distance between the successive header course, between the successive लिख लिया, successive between the successive header course is kept equal to least common multiple thickness of thickness is equal to least common multiple of thickness of backing and thickness of backing and facing of brick and facing of brick. Next, this type of bond is not structurally good. This type of bond is not structurally good and load distribution is not uniformly, and load distribution is not uniformly. ये सारी कहानी है इसकी. नेक्स्ट इज इसमें मैंने आपको फ़ोटो तो लाया नहीं, इसकी फ़ोटो करनी पड़ेगी डाउनलोड. चलो देखते हैं इसमें क्या बताता है. देखो फेसिंग बोर्ड क्या कहता है. फेसिंग बोर्ड कहता है दिस बॉन्ड इज़ यूज्ड वेयर द ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेज ऑफ थिकनेस, अलग अलग साइज़ की थिकनेस जो यूज़ की जाती है इन फेसिंग और बैकिंग में. फेस में अलग, बैकिंग में अलग. समझ रहे हो. नेक्स्ट बताया इन दिस बॉन्ड हेडर कोर्स इज प्रोवाइडेड आफ्टर द सेवरल स्ट्रेचर कोर्स. इसमें बताया इस बॉन्ड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे वैसे जनरली होते हैं 3 से 5 कोर्स के बाद हेडर प्रोवाइड किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द वैल्यू, यहाँ पे क्या है आपने स्ट्रेचर प्रोवाइड कर दिए, स्ट्रेचर, फिर अगेन स्ट्रेचर, अगेन स्ट्रेचर, अगेन उसके बाद क्या आ गया, हेडर आ गया. ठीक है, समझ गए ना. दिस इज स्ट्रेचर, दिस इज स्ट्रेचर, स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर. तो दिस ऑल आर स्ट्रेचर्स. 3 से 4-5 कोर्स के बाद एक हेडर प्रोवाइड किया जाता है. इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज फेसिंग बॉन्ड. ये सारी कहानी है. तो इसमें बताया इन दिस बॉन्ड हेडर कोर्स इज प्रोवाइडेड आफ्टर द सेवरल स्ट्रेचर कोर्स. सेवरल मतलब 3 से 5 कोर्स लेके चलते हैं. नेक्स्ट बताया एज द थिकनेस ऑफ ब्रिक्स आर डिफरेंट इन फेसिंग एंड बैकिंग. जैसे कि देखा अपन ने जो थिकनेस है ब्रिक्स की वो डिफरेंट हैं, फेसिंग में अलग हैं और पीछे अलग हैं. जैसे यार फेस में तो अपन ने लगा दी, स्ट्रेचर्स लगा दिए, पीछे की तरफ कैसे भी लगा दी ब्रिक्स, समझ रहे हो. तो उसमें बोलते हैं. एंड सो क्या होगा, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव हेडर कोर्स इज केप्ट इक्वल टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ थिकनेस ऑफ बैकिंग एंड फेसिंग. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसमें बताया
वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दी थिकनेस सक्सेसिव हेड। अच्छा, सक्सेसिव मतलब जैसे 5 कोर्स हो गए, 5 कोर्स का हेडर आ गया, फिर अगेन 5 कोर्स हो जाएंगे, तो ऐसे सक्सेसिव कोर्स, इन दोनों की जो थिकनेस है वो कितने है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ थिकनेस ऑफ बैकिंग एंड फेसिंग। भाई जो लीस्ट मतलब कम से कम जो बैकिंग की और फेसिंग की जो थिकनेस है उसका मल्टीपल्स में होगी उसकी थिकनेस। समझ गए बात? समझे? नेक्स्ट बताया दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नॉट स्ट्रक्चर। ये गुड नहीं होती, क्यों? क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? यूनिफॉर्मली नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है इसके अंदर। तो जहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। समझ गए? तो ये सारी कहानी है। ऐसे करते हैं, आज इतना ही करते हैं, कल सुबह से करते हैं बाकी सारे बॉन्ड्स। ठीक है? फ्लो टूट गया।